آپ کو بتائیں متنازع کینال منصوبے پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں برف پگھلنے لگی۔ وفاق اور سندھ مذاکرات پر متفق۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناءاللہ کا سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن سے فون پر رابطہ۔ دونوں رہنماؤں میں اتفاق کیا گیا کہ ملاقات کر کے کینال مسئلے کو بات چیت سے حل کیا جائے۔ رانا ثناءاللہ کا کہنا تھا کہ کینالز کے معاملے پر سندھ کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور میاں نواز شریف نے ہدایت دی ہے کہ سندھ کے تحفظات کا خاتمہ کیا جائے۔ سندھ حکومت کینالز کے معاملے پر ہر فورم پر اپنا موقف پیش کر چکی ہے۔ شرجیل میمن کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی اور سندھ کے عوام کو متنازع کینالز پر شدید تحفظات ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے عوام کے لیے 1991 کے معاہدے کے تحت پانی کی منصفانہ تقسیم چاہتی ہے۔ پیپلز پارٹی بھی کینالز کے معاملے پر وفاقی حکومت سے مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ دریائے سندھ سے 6 کینالز نکالنے کے منصوبے کے خلاف جسکم کی کال پر صوبے کے مختلف شہروں میں شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام ہڑتال۔ حیدرآباد لاڑکانہ میں اہم کاروباری مراکز ریشم گلی اور شاہی بازار ہیں۔ سجاول کے چھوٹے بڑے تجارتی مراکز مکمل طور پر بند ہیں۔ سڑکوں پر ٹریفک نہ ہونے کے برابر ہے۔ مورو بھی شٹر ڈاؤن ہے جبکہ مرکزی شاہراہ کو بند کر دیا گیا ہے۔ شاہی بازار، دادو روڈ، موبائل مارکیٹ، صرافہ بازار سمیت تمام کاروباری مراکز بند ہیں۔ کاروباری سرگرمیاں مفلوج ہونے سے شہریوں کو روزمرہ ضروریات کی فراہمی میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ٹھل میں ٹرانسپورٹ بند ہے۔ چھوٹی بڑی دکانیں اور تجارتی مراکز بند ہیں۔ ٹھل سے کراچی، حیدرآباد، سکھر سمیت دیگر شہروں کو جانے والی ٹرانسپورٹ سروس معطل ہے۔ کندکوٹ، ٹنڈو محمد خان اور جیکب آباد میں بھی شٹر ڈاؤن ہے۔ پہیہ جام کی وجہ سے اندرون سندھ چلنے والی ٹرانسپورٹ سروس معطل ہے۔ گھوٹکی کے رہنماؤں فقیر رمضان کلوڑو، حنیف سمرو اور دیگر کی قیادت میں ریلی نکالی گئی ہے۔ مقررین کا کہنا تھا کہ دریائے سندھ ہماری زندگی ہے اور ہم کینال کے لیے اجازت نہیں دیں گے۔ کینال کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ یہ سندھ دشمنی ہے۔ غیر آباد زمینوں کو آباد کرنے کے لیے سندھ کی آباد زمینوں کو بنجر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جب تک منصوبہ واپس نہیں لیا جائے گا احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا۔ روڑی میں پشاور سے کراچی جانے والی رحمان بابا کو روڑی ریلوے اسٹیشن پر عارضی طور پر روک دیا گیا۔ ریلوے حکام کے مطابق جے سندھ کارکنان کی جانب سے عوامی ایکسپریس کو خیرپور ریلوے اسٹیشن کے قریب روکا گیا تھا، جس کی وجہ سے ٹرین کی آمد و رفت عارضی طور پر روک دی گئی ہے۔ دوران مسافروں کو شدید مشکلات اور پریشانی کا سامنا ہے۔ خیرپور میں لقمان کے مقام پر کینالز کے خلاف جاری ریلوے ٹریک پر دھرنا 4 گھنٹے بعد ختم کر دیا گیا۔ مظاہرین ببرلو دھرنے کی طرف روانہ ہو گئے۔ ریلوے حکام کے مطابق اپ اور ڈاؤن ٹریک مکمل طور پر بحال کر دیا گیا، جبکہ عوامی ایکسپریس اپنی منزل کی جانب روانہ ہو چکی ہے۔ وزیر مملکت مذہبی امور کھیلداز کوہستانی نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت کینالز پر کوئی یک طرفہ فیصلہ نہیں کرے گی۔ نہروں کے معاملے پر جلد پیپلز پارٹی سے بات ہوگی۔ ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا جائے گا جس سے صوبے کو مسائل پیدا ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نہروں کے معاملے کو جلد حل کر لیں گے۔ پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت ہے، صوبے کے تحفظات سامنے رکھنا ان کا حق ہے۔ میرے اوپر حملے میں ملوث لوگوں کو سامنے لایا جائے، ایسی بزدلانہ کارروائیاں ہمیں اپنے کام سے روک نہیں سکتی ہیں۔ انشاءاللہ جلد پیپلز پارٹی کی قیادت سے اس معاملے پہ حکومت بیٹھے گی اور ہم ان کو بیٹھنے کی دعوت دیں گے تاکہ یہ معاملہ خوش اسلوبی سے حل ہو ہے۔ سندھ کے تحفظات جائز ہیں، ان کو حل کیا جائے گا۔ ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا جائے گا جس سے ایک صوبے کو ناراض کیا جائے۔ ایک صوبے میں جو تحفظات ہیں ان کو ہم بالکل دور کریں گے۔ میں سندھ کے عوام کو یقین دلاتا ہوں ہم کوئی یک طرفہ وفاق فیصلہ نہیں کرے گی۔ جب تک سندھ کی حکومت، سندھ کی عوام، ان کے تحفظات دور ہوں گے یہ قدم آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ تو یہ اس کا حل جو ہے وہ جو آئین میں درج ہے اور آئینی فورم میں موجود ہے، وہاں پہ بھی بات ہوگی۔ موسم کا ذکر کریں تو اسلام آباد کے مختلف سیکٹرز میں آج بھی بارش۔ راولپنڈی میں بادل برس پڑے، ژالہ باری بھی ہوئی، ٹھنڈی ہواؤں سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ محکمہ موسمیات نے 19 اور 20 اپریل کو راولپنڈی، اسلام آباد میں ژالہ باری کی پیشگوئی بھی کر رکھی ہے۔ راولپنڈی میں بادل برس پڑے، ژالہ باری بھی ہوئی ہے اور جڑواں شہروں میں ٹھنڈی ہواؤں سے موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ اپر چترال میں گزشتہ 3 دنوں سے بارش اور پہاڑوں پر برفباری جاری ہے۔ بارشوں اور برفباری کے باعث علاقے میں موسم انتہائی سرد ہو گیا اور محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں اور برفباری کا سلسلہ آئندہ 2 دنوں تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ بارشوں کی وجہ سے نظام زندگی بری طرح متاثر ہو کے رہ گیا۔
हरिपुर, खानपुर और गाजी में बारिश और जालाबारी का सिलसिला जारी, जिससे मौसम खुशगवार हो गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला आज शाम तक जारी रहने का इम्कान है। जालाबारी के बायस दुकाट और गंदम की फसल को नुकसान पहुंचने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। बताएं, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारा ने कहा कि मुआशी हालात बेहतरी की जानिब गामजन। दुनिया के मालियाती इदारे तारीफ कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने भी मुआशी बेहतरी में अहम किरदार अदा किया। मरियम नवाज पंजाब में बेहतरीन काम कर रही है। लाहौर में ईस्टर की तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि फख्र है कि मैं 70,000 मसीही वोटर्स का नुमाइंदा हूं। मसीह बरादरी के हक की बात हमेशा करता रहूंगा। पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए या मेरे पास बैरून मुल्क से, फॉरेन कंट्रीज से जितने डेलीगेशंस आते हैं तो मैं उनको बड़े फख्र से बताता हूं कि मैं 70,000 क्रिश्चियन वोटर्स का नुमाइंदा हूं पाकिस्तान के अंदर, और इस यकीन दहानी के साथ कि आपके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करता रहूंगा, आपके हक की आवाज़ उठाता रहूंगा। हालात बेहतर हुए हैं और उड़ान पाकिस्तान की तरफ हम जा रहे हैं। इसमें मैं समझता हूं कि जहां पे मियां नवाज शरीफ और उनकी पूरी पार्टी का किरदार है, मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने पंजाब में बहुत खिदमत की है, नए नए मंसूबे लेके आई हैं, पुराने रिकॉर्ड तोड़े हैं, और मियां शहबाज शरीफ ने दुनिया में पाकिस्तान को एक इज्जत दिलवाई है, और दुनिया के मालियाती इदारे ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत एक उभरती हुई मईशत है, और ये एक बड़ा मिरेक्युलस टर्न अराउंड है, एक मुअज्जाती टर्न अराउंड है कि इकॉनमी तरक्की कर रही है। तो यहाँ पे मैं आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का भी जिक्र करूंगा कि ये टीम वर्क है जिसके नतीजे में आज पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। तो पाक फौज का, SIFC का इसमें भरपूर किरदार है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि गैर मुल्की फूड चेन में 25,000 से ज़ायद पाकिस्तानी काम करते हैं। क्या उसे बंद करने से फ़लस्तीनियों के मसाइब कम हो जाएंगे? ऐसे हमले नाकाबिले बर्दाश्त हैं। ऐसे हमलों में बैरूनी हाथ भी मुलव्विस हो सकता है। किसी को भी अमन व अमान हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देंगे। कल खेलदास पर हमला किया गया। सियासत अपनी जगह होती है, ऐसे हमलों को रोकना होगा। से जो है वो फ़लस्तीन और गज़ा से यकजहती के नाम के ऊपर लोगों के कारोबार को और इमलाक को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इन फूड चेन्स में 25,000 पाकिस्तानी, कौन 25,000 पाकिस्तानी, कोई यहूदी काम नहीं करता, इसमें यहाँ पर पाकिस्तानी काम करते हैं। और जहाँ जहाँ इन फूड चेन्स को निशाना बनाया गया वहाँ पर पाकिस्तानी शहरियों को नुकसान हुआ है। ज़ख्मी भी पाकिस्तानी शहरी हुए हैं और हलाक भी जो है वो पाकिस्तानी शहरी हुआ है। और ये कोई बैरूनी हाथ भी इसमें मुलव्विस हो सकता है। खेलदास साहब, उनके ऊपर सिंध में जो है वो एक पूरा प्लान करके एक हमला किया गया। सियासत अपनी जगह होती है, लेकिन किसी की ज़िंदगी के साथ खेलना, किसी के ऊपर वो करना, ये यकीनन नाकाबिले बर्दाश्त है। पंजाब में पावर शेयरिंग का मामला, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आज भी सर जोड़कर बैठेगी। इजलास कुछ देर बाद गवर्नर हाउस लाहौर में होगा। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, नदीम अफजल चंद, सैयद हसन मुर्तज़ा, सैयद अली हैदर गिलानी और साबिक गवर्नर मखदूम सैयद अहमद महमूद करेंगे। जबकि मुस्लिम लीग नून की जानिब से राना सनाउल्लाह, स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान और सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब शिरकत करेंगी। इजलास में चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर समेत आला अफसरान भी शरीक होंगे। इजलास में पंजाब में पावर शेयरिंग के लिए होने वाली अब तक की पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा और कोऑर्डिनेशन कमेटी की सब कमेटी की सिफारिशात पर मुशावरत होगी। जमात इस्लामी का मिलियन मार्च के लिए जगह की तब्दीली का मामला, ज़िले इंतजामिया का रावलपिंडी के मकाम पर फैजाबाद को आम ट्रैफिक के लिए खोलने का फैसला। हैवी मशीनरी की मदद से सुबह लगाए गए तमाम कंटेनर्स हटाने का अमल जारी है। जमात इस्लामी ने इंतजामिया को एक्सप्रेस वे पर पुरअमन मार्च की यकीन दहानी करवाई है। फैजाबाद मरी रोड एक्सप्रेस वे, राब्ता सड़कें और रेड जोन को मुकम्मल तौर पर सील किया गया था। राब्ता सड़कें बंद होने से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर हो रही थी। फैजाबाद में तिजारती मराकिज मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए थे। फैजाबाद को खोलने के बाद पुलिस की नफरी भी हटा ली गई। गजा में जारी इसराइल जारियत के खिलाफ कराची में मरकजी मुस्लिम लीग की जानिब से शोहदाए गजा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। मरकजी स्टेज शाहराए कायदीन पर लगा दिया। बड़ी तादाद में कुर्सियां भी लगा दी गई हैं। इसी हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं मजीद तफसीलात से इसरार मुगीरी। जी इसरार, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, उस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची में शाहराह कायदीन पर, जहाँ पर मरकज़ी मुस्लिम लीग की जानिब से यहाँ पर स्टेज बनाया गया है जो गज़ा में जारी इसराइल की जारियत है और गज़ा में जो शहरी हैं उनसे यकजहती के लिए आज शोहदाए गज़ा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। यहाँ पर मरकज़ी स्टेज भी है और बड़ी तादाद में यहाँ पर कुर्सियाँ लगाई गई हैं, जबकि तमाम तर इंतज़ामात हैं वो मुकम्मल तौर पर यहाँ पर पूरे किए जा रहे हैं। और इस वक्त मैं मरकज़ी स्टेज पर ही मौजूद हूँ। कराची के इनके सदर हैं मरकज़ी मुस्लिम लीग के नदीम अमान साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। इस वक्त कराची के अंदर भरपूर तैयारियां जारी हैं कि आज हम यहाँ से दुनिया को एक पैगाम दें कि जो गज़ा के मज़लूम मुसलमान हैं, कराची वाले जो हैं उनके साथ खड़े हैं। और कराची का हर तबका, मर्द, ख़वातीन, बूढ़े, बच्चे, वकला, डॉक्टर, उस्ताज़ा और मुख्तलिफ शोबा हाई ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, बिलखुसूस उलमा कराम, वो आज के इस प्रोग्राम के अंदर शरीक होंगे। मुख्तलिफ इलाकों से जो काफ़िले हैं वो निकलने का सिलसिला शुरू हो गया है। कुछ देर में अभी इंतज़ामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। मैं समझता हूँ कि ये इंतज़ामात भी कम होंगे, तहद निगाह लोग होंगे और दूर दूर तक जो है यहाँ पर लोगों का एक ठाठे मारता सरों का समंदर होगा। जी बिल्कुल, आपने गुफ्तगू सुनी। ये मरकज़ी मुस्लिम लीग के यहाँ पर सदर हैं कराची के नदीम अमान साहब, उनका यही कहना था कि गज़ा के जो लोग हैं उनके जो कायदीन हैं वो भी आज शरीक होंगे। तमाम तर जो कराची में पार्टियाँ मौजूद हैं, सियासी मजहबी, उन तमाम को दावत दी गई आज इस कॉन्फ्रेंस में, शोहदाए गज़ा कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए। कुछ ही वक्त के बाद यहाँ पर जो है इसका मुकम्मल तौर पर आगाज़ होगा और मुकम्मल तौर पर कराची के शहरी इसमें आज शिरकत करेंगे और शोहदाए गज़ा का यहाँ पे इस प्रोग्राम का बाकायदा जो है वो आगाज़ होगा। जी, पंजाब में सेहत के मंसूबों में 6 अरब 23 करोड़ रुपए कहां खर्च हुए, महकमा सेहत भी लाइल्म निकला। तहरीक इंसाफ के दौर में 6 अरब 23 करोड़ रुपए कहां खर्च हुए, किसी को कुछ इल्म नहीं। 6 अरब 23 करोड़ रुपए के अखराजात का रिकॉर्ड हासिल करने की ऑडिट डिपार्टमेंट की कोशिश भी बेसूद साबित हुई। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में महकमा सेहत का अखराजात के रिकॉर्ड न होने का एतराफ भी सामने आया है। महकमा सेहत के अफसरान ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जवाब दिया कि हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है। CNW से मालूम करें 2020-21 के ऑडिट के दौरान महकमा सेहत को ऑडिट रिकॉर्ड फराहम न करने का इंकशाफ भी हुआ है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 2 के चेयरमैन सैयद अली हैदर गिलानी ने मामले की तहकीकात की हिदायत कर दी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 2 की कोरोना के दौरान गैर मुल्की दोस्तों के अतिया किए गए वेंटिलेटर्स के इस्तेमाल न होने पर भी तशवीश का इजहार किया गया है। कमेटी ने खराब वेंटिलेटर्स फौरी ठीक करवाने की हिदायत कर दी है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ दौर में अखराजात का रिकॉर्ड हासिल करने की भी कोशिश की जा रही है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में महकमा सेहत के अखराजात के हवाले से घपलों का इंकशाफ हुआ है और रिकॉर्ड मौजूद नहीं। 6 अरब 23 करोड़ रुपए कहां खर्च हुए हैं, महकमा सेहत लाइल्म निकला, कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। रिकॉर्ड हासिल करने की कोशिश भी बेसूद साबित हुई है और ऑडिट के हवाले से भी कुछ उसमें पैराग्राफ मौजूद नहीं है। हमारे पास रिकॉर्ड ही नहीं। CNW से मालूम करें। महकमा सेहत पंजाब की जानिब से यह जवाब दिया गया है। आपको बताते चलें, पंजाब में 6 अरब 23 करोड़ रुपए कहां खर्च हुए हैं, महकमा सेहत इस हवाले से ला इल्म निकला है। इस हवाले से मजीद जानेंगे ब्यूरो चीफ लाहौर उमर दराज गोंदल से। जी उमर दराज, बताइएगा, महकमा सेहत ला इल्म है कि 6 अरब 23 करोड़ रुपए कहां खर्च हुए? जी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अंदर ये मामला जेर बहस है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में 6 अरब रुपए से जायद की रकम है। और इस बारे में जो महकमा सेहत हुकाम है उनसे जब जवाब तलबी की गई तो उन्होंने कहा हमें इस बारे में किसी किस्म का कोई इल्म नहीं है। जो CNW गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है उनसे पूछा जाए। लेकिन इस बारे में जो हुकाम है, अब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने सिर्फ बाकायदा तहकीकात का हुक्म दे दिया है, बल्कि उस दौर में, कोरोना के दौर में जो वेंटिलेटर्स आए थे तो 2 ममालिक की तरफ से दिए गए थे, वो भी नाकारा होने का इंकशाफ हुआ, जिसके ऊपर उस सिलसिले में कहा गया कि उनको भी ठीक करके जो है ताकि काबिल अमल उसको बनाया जाए। जी बहुत शुक्रिया। उमर दराज गोंदल हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।